Dear students, who does not love freedom on this beautiful planet? Everybody wants to be free and live in open air. She wants freedom from all bondage of life. She wants freedom from all restrictions of life. Freedom is a sweet sounding word. The poem which we are going to discuss today is about a little girl, Amanda. The state of mind of Amanda and the aspiration of little girl Amanda, who is continuously nagged by her parents. What she thinks? It seems to her that her independence has been curtailed. And sometimes you may also feel like the little girl Amanda. And this is a beautiful poem which describes the state of mind of that little girl when she is restricted with do's and don'ts by her parents. And now, what kind of freedom she wants here? What kind of restrictions has been imposed by her parents? The poem Amanda, which is written by an Australian poetess, Robin Colleen, explains all these questions in this poem, and let's explain the poem. Now the poem goes like this. First stanza is, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Mother says, Amanda, not to bite her nails. She should not slouch and should sit up straight. Should not hunch her shoulders. कंधे ठीक रखना, सीधे बैठना, नाखून को ना काटना, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाती है. बट Amanda doesn't take it right way. She imagines something else. What is her reaction? Let's see in the next stanza. वो उससे तंग होकर के घर में बार बार नैग करते हैं उसको, तो वो एक मरमेड बनना चाहती है. यार क्या सोचती है देखते हैं इस लाइन्स में. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. कि एक मरमेड बनना चाहती हूँ मैं, जलपरी बनना चाहती हूँ, वहाँ मैं ब्लिसफुली वहाँ ड्रिफ्ट कर सकूँ, ऐसा वो कहती है. आई वॉन्ट टू ड्रिफ्ट joyfully with the gentle waves of sea without any restriction, all alone. Sole inhabitant की बात की है इसमें. When Amanda is asked, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I think I told you to clean your shoes, Amanda. Did you do this? Did you do that? Did you do this? You should do that. जब ये कहा जाता तो अमांडा के मन में एक फीलिंग पैदा होती है. इस इनर फीलिंग है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड वेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट. वो ऑर्फन बनना चाहती है, अनाथ बनना चाहती है, गलियों में घूमना चाहती है, नंगे पाँव से घूमना चाहती है, क्योंकि साइलेंस और फ्रीडम को वो चाहती है. वो फ्रीडम चाहती है. नेक्स्ट स्टेंजा, some more instructions are given to Amanda. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Mother says she should not eat chocolate. उसे चॉकलेट नहीं खाने क्योंकि उसको एक्ने हुए हैं, कुछ पिंपल्स आई हैं. And she should remember that acne. Chocolates are not good for acne. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Amanda, you should look straight at me when I speaks you. इस तरह से वो इंस्ट्रक्ट करती है. लेकिन अमांडा ठीक नहीं समझती ये बात और कुछ और सोचती हैं. क्या सोचती हैं? Let's see in the next stanza. When she is prevented to eat chocolate, she becomes sad, and what thoughts arises in her mind? Let's see. She says, I am Rapunzel, I have not a care. Life in tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. She wants to be a Rapunzel. वो Rapunzel बनना चाहती है. And you must have heard the story of Rapunzel. Rapunzel को एक टावर में एक विच के द्वारा, जादूगरनी के द्वारा रखा गया था. वो अपने लंबे बालों के लिए प्रसिद्ध है. एंड शी इज़ प्राउड ऑफ हर लॉन्ग एंड कर्ली गोल्डन हेयर. तो एक राजकुमार वहाँ पर आता है. एंड राजकुमार ही फेल इन लव
वो टावर में अपने लंबे बाल नीचे करके उसको ऊपर खींचती है। तो इस तरह से वो एक पंजल बनना चाहती है। इन लास्ट stanza some more instructions are given to her. Look here, stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anybody would think that I nagged you, Amanda. मदर कह रही है, अमांडा स्टॉप दैट सल्किंग, ये नाराज होना, नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, नॉट इवन स्माइलिंग, इसको स्टॉप करो, तुम बहुत मूडी हो। और कोई भी कहेगा कि बार बार मैं नैग करती हूँ, तुम्हें तंग करती हूँ, स्टॉप दिस ऑल। अमांडा इज कॉन्स्टेंटली बीइंग नैग्ड बाय हर पेरेंट्स, शी वांट्स फ्रीडम, she wants freedom from all type of restrictions, all type of controlling, and this is all about the poem. Dear students, in this poem, the mother advises Amanda not to bite her nails, not to hunch her shoulders, and not to eat chocolate. She advises her to sit straight and take care of her acne. She further advises her to keep herself clean. The poet has beautifully explained the inner feeling of Amanda in this poem. And every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed, as Amanda feels. The poet has written this wonderfully. And dear student, English is a very beautiful and wonderful language. To enjoy the beauty of this language, let's recite the poem once again. Amanda by Robin Clean. Let's go to the first stanza. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching. Sit up straight, Amanda. Mother says, don't bite your nails. अपने nails मत काटो. Shoulder को hunch मत करो. कंधों को झुकाओ मत. Sit up straight. सीधे बैठो. Slouching करके मत बैठो. बेंड करके मत बैठो, ऐसा मदर इंस्ट्रक्ट कर रही है। लेकिन अमांडा को ये ठीक नहीं लग रहा। अमांडा क्या सोचती है, देखिए, दिस इज हिज इनर फीलिंग इस पैराग्राफ में। व्हाट डज शी थिंक, क्या वो सोचती है, देयर इज अ लैंग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। कि एक लैंग्वेड एमराल्ड सी है, एक ऐसा समुद्र है, ऐसा सी है जो ग्रीन कलर का है, शांत है, लैंग्वेड है, एमराल्ड ग्रीन कलर के लिए कहा है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वहां और कोई नहीं, केवल मैं ही एक इनहेबिटेंट हूं, एक रेजिडेंट हूं, एक निवासी हूं। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, अपने आप को वो मरमेड कह रही है। मरमेड मीन्स उसको हम जल परी भी कहते हैं, कि वो बड़े ब्लिसफुली हैप्पीली ड्रिफ्ट कर रही है समुद्र के पानी में। इन द वेव्स ऑफ द सी शी इज ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ऐसा उसे लगता है कि घर से अच्छा तो ये है कि मैं एक मरमेड बन जाऊं और समुद्र में हैप्पीली मैं ड्रिफ्ट करूं, ऐसा वो सोच रही है। घर वालों ने तंग करके रखा है। और मदर क्या कह रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मदर फिर इंस्ट्रक्ट कर रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या होमवर्क किया, डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी मतलब क्लीन, क्या आपने कमरे को साफ किया था अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैंने तुम्हें शूज को भी क्लीन करने के लिए कहा था, क्या तुमने ये सब काम किया, डिड यू डू दिस, डिड यू डू दैट। इससे तंग आकर के फिर से देखते हैं वो क्या सोचती हैं अमांडा। वो सोच रही है अमांडा, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. जब माँ उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि होमवर्क किया या नहीं किया, उसके बाद तो वो क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक ऑर्फन होती, मैं एक ऑर्फन, यू नो, जिसको हम बोलते हैं अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में मैं रोम करती हुई, घूमती हुई, जहाँ कोई और नहीं, और अपने हश्ड वेयर फीट, नंगे पांव से मैं सॉफ्ट डस्ट में चल रही हूं, और वहां साइलेंस है, फ्रीडम है। साइलेंस और फ्रीडम अच्छी है, बिकॉज लास्ट लाइन में उन्होंने कहा भी है, सोचा है, ये फीलिंग है उसकी,
The silence is golden and the freedom is sweet. In the next paragraph, again she is instructed by mother, don't eat that chocolate, Amanda. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? कि Amanda, don't eat chocolates. Chocolate मत खाओ because you have acne in your face. तुम्हारे चेहरे में कुछ pimples हुई हैं. Acne pimple को कहते हैं. हाँ, वो chocolate is not good for that. तो एडवाइस कर रही है not to eat chocolate, but अमांडा को वो ठीक नहीं लग रहा है. She feels that her independence has been taken away. Will you please look at me when I am speaking to you? जब मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूं तो सीधे मुझ पर देखो. अमांडा जरूर सोच रही होगी कि मैं खाऊं क्या, what should I eat, how should I speak, what should I do. ये सब चीजें मैं खुद निर्धारित नहीं कर रही हूं. सर्टेनली ये सारी चीजें पेरेंट्स मेरे लिए कर रहे हैं और जिससे मैं बहुत तंग आ गई हूं, ऐसा वो सोचती हैं. और क्या सोचती है देखें. डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांडा के बाद आई एम रपंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन अ टाउन इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. अब वो सोचती कि मैं कोई रपंजल होती, मैं कोई स्वर्ग की परी होती. रपंजल की आपने स्टोरी सुनी होगी, यू मस्ट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ रपंजल. कि वो एक टावर में उसको किसी विच ने, किसी जादूगरनी ने रखा था और वहां जब वो अकेली थी तो वहां की लाइफ बड़ी ट्रैंक्विल और बिल्कुल रेयर थी और कोई आता नहीं था वहां पर, एकांत सा जीवन था. वो कहते कि ऐसी ही लाइफ मुझे चाहिए, घर से अच्छा तो उस टावर में रेपंजल बन करके मैं रहना चाहती हूँ. आई विल नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. अपने ब्राइट हेयर के लिए, पर उसको बहुत प्राउड था और वो कह रहे कि मैं अपने ब्राइट हेयर को कभी लेट डाउन नहीं होने देती, क्योंकि इन्हीं ब्राइट हेयर से एक राजकुमार को, बहुत लंबे थे ये, टावर के ऊपर इन्हीं ब्राइट हेयर के द्वारा चढ़ाया था. यू मस्ट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ रेपंजल. और वो रेपंजल बनना चाहती है जहाँ कोई नहीं, एकांत है, रेयर है और कोई वहां पर उसको इंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं है, ऐसा वो सोचती है. स्टॉप दैट सल्किंग. नेक्स्ट पैराग्राफ में, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा. नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ है, ये सल्किंग बंद करो. सल्किंग मीन्स नाराज होना, नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, नॉट इवन स्माइलिंग, दैट इज कॉल्ड सल्किंग. ना कोई हंसना, ना मुस्कुराना, ना बातें करना, रूठ करके बैठ जाना. कहते ये ठीक नहीं है क्योंकि यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा. एनीवन शुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कि मैं तुझे नैगिंग कर रही हूं, मैं तुझे बार बार टोक रही हूं. सब लोग ये सोचेंगे, इसलिए अपना मूड ठीक करो. स्टॉप दिस सल्किंग एंड बी हैप्पी. ऐसा वो उसको इंस्ट्रक्ट करिए ताकि लोग उसको ये ना कहे कि योर मदर ऑलवेज नेग्स यू, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हें नेग करती है, ऐसा ना कहे. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोइम अमांडा, एंड प्लीज रीड दिस पोइम and read this poem and read this aloud.